we are the caretaker. We are not the owner of the car. The owner are the customers. Right. So we build a community of 6, 7, 8, 9 people and form a LLP, get the car registered in the LLP name, funded by the customer. There is no loan, no EMI. 7-सीटर कार सबको चाहिए क्योंकि इंडिया में सबकी फैमिलीज बड़ी है, लेकिन कार सबकी छोटी है. Let's say इस मॉडल के थ्रू, if I want to fractionally own BMW X5, तो मुझे कितने की पड़ेगी and how do you go about the process? आपने 10 lakhs इन्वेस्ट किया, आपको 30 days into 5 year 150 days गाड़ी मिली. After 5 year you will get resale value. You can expect somewhere around 4-5 lakhs rupees as money coming back to you after 5 year. एग्जाम्पल, मेरे को गाड़ी लेनी है, मुझे पिंक कलर की चाहिए फॉर एग्जाम्पल, अगर चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपने शौक के लिए ले रही हूँ, लाइफस्टाइल के ले रही हूँ, कुछ दिनों के लिए ले रही हूँ, फॉर व्हाटएवर पर्पस इट इज, या कुछ मुझे फीचर एनहांसमेंट्स चाहिए, इज दैट पॉसिबल इन दिस मॉडल? Cars are also advanced. So अब वो पहले वाला माइंडसेट नहीं है लोगों का कि मेरे को इतना मेंटेन करना है या वो करना है. आप 5 साल आराम से गाड़ी को एंजॉय करो और 5 साल के बाद गाड़ी सेल हो जाएगी, आपको रीसेल वैल्यू मिल जाएगी. अगर जी वैगन किसी को ओन करनी है फॉर एग्जांपल, राइट, बिकॉज क्यों नहीं, व्हाई नॉट, इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी देन व्हाई नॉट, देन कितनी की पड़ेगी और कैसे होगा वो? So you have a lifestyle like a super rich person at a very affordable. Hello everyone and welcome back to the Dhairya Decodes podcast. In today's episode, we are going to be joined by yet another interesting guest, जिनकी career trajectory को हम decode करेंगे. आज जिनसे हम जुड़ने वाले हैं, उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी बिहार में, उसके बाद वो गए कैलकाटा एंड आज वो बैंगलोर, जो कि भारत का टेक कैपिटल बन चुका है एंड स्टार्टअप वर्ल्ड में भी इतना फेमस है, उधर ही इज बिल्डिंग अ टेक फोकस्ड स्टार्टअप. And he is none other than Mr. Sanjeev Jain, the founder of ProRata Cars, which is the world's first and only premium luxury fractional car ownership platform. Which means that you get to own your favorite dream premium luxury cars at just 8.33% of their on-road price, which is an amazing way of revolutionizing the way Indians experience and own cars. आज के एपिसोड में हम जानेंगे उनके early career days के बारे में, his journey of becoming a CA and then a serial entrepreneur. We'll also know a lot more about what he's doing with ProRata Cars, what are they trying to build, how are they solving for a problem which nobody else is solving for in the world, and a lot more. So without any further ado, let me welcome Mr. Sanjeev Jain to the Dhairya Decodes podcast. Hello sir. Hi. How are you doing? Very well, yeah. Great. Thank you so much for doing this, sir. And it's a pleasure to have you here. I would actually like to start with asking you कि आपकी journey obviously बहुत interesting रही है, जैसे कि मैं अपनी audience को बता रही थी. Coming from Bihar, moving to Calcutta to now, you know, building a base in Bangalore for the last 7+ years, जैसे कि आपने मुझे बताया था. Let's start with understanding a little bit about your childhood and early career days. आप किस तरीके की family background से आते हो? अर्ली ऑन अपने आसपास अपने लोगों को क्या करते हुए देखा, करियर वाइज एंड प्रोफेशन वाइज, एंड उसका आपके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ा? एंड इफ यू कुड टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर जर्नी, अनकन्वेंशनल जर्नी ऑफ बीइंग अ सीए, नॉट टेकिंग अप अ टिपिकल 9 to 5 job and you know just starting with entrepreneurship right after it. Yeah, so basically I'm from a small town in Bihar, किशनगंज, जहाँ मैं born हुआ. हाँ. एंड वहाँ से मैंने स्कूलिंग की क्लास 10th तक. बाल मंदिर स्कूल है, बहुत फेमस स्कूल है किशनगंज में. वहाँ से फिर मैं कैलकाटा शिफ्ट हो गया और कैलकाटा में एक इकोसिस्टम है बड़ा बाजार का, विच इज काइंड ऑफ कोटा फैक्ट्री फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ओके. सो वहाँ पे सब सीए, बड़ा बाजार. सो वो काफी लोग वहाँ पे सीए करते हैं और सबका इकोसिस्टम है, सभी सीए कर रहे होते हैं. तो बिना देखे मैंने भी सीए स्टार्ट कर दिया, एक सीए फर्म में जॉब स्टार्ट कर दिया एट द एज ऑफ 16-17, मतलब क्लास 11-12 में. क्योंकि आप मतलब होम टाउन आपका किशनगंज है और आप कैलकाटा में हो, तो वहाँ पे मतलब सबको ही स्टार्ट कर देते हैं एक अर्ली ही जॉब करना, काम सीखना. उस समय की बात है, 95-97 की बात. राइट. सो मैं काफ़ी अर्ली स्ट्रगल करके, बिकॉज फाइनेंशियल मेरे पेरेंट्स की उतनी स्टेबिलिटी नहीं थी, तो मैंने स्ट्रगल करके अपना 5 साल के अंदर में सीए भी कंप्लीट किया, कंसल्ट मतलब पूरे काम भी सीख गया मैं एक सीए फर्म में क्या क्या होता है. तो सीए कंप्लीट होते ही एट द एज ऑफ 22-23 आई स्टार्टेड माय ओन कंसल्टिंग फर्म. एंड फिर वहाँ पे मैं नेक्स्ट 5 to 10 years में मैं काफी हद तक अपने आप को सेटल कर पाया. फाइनेंशियली मैंने घर ले लिया, ऑफिस ले ली, अपने आप को वेल टू डू सेटल कर लिया. एट द एज ऑफ 30 आई एम काइंड ऑफ फाइनेंशियली फ्री. सो उसके बाद मैंने सोचा कि अब कुछ बड़ा करना है, तो एक अच्छा बिजनेस करना है. कंसल्टिंग बहुत हो गई, तो स्टार्ट किया एक रियल एस्टेट का बिजनेस, रियल एस्टेट ब्रोकर्स कम्युनिटी प्लेटफॉर्म.
अच्छा। सो वो कलकत्ता में 2012 में स्टार्ट किया, 2-3 साल वहाँ पे ऑफलाइन, बिकॉज नया बिजनेस था, नई तरीका से वापस एक नई जर्नी थी, तो स्टार्ट किया। कंसल्टिंग फर्म को मैंने एक मतलब ऑटो पायलट मोड में डाल दिया था। उसके बाद में जब देखा कि ये बिजनेस को टेक से मेरे को आगे बढ़ाना है और टेक के लिए बेस्ट सिटी इज बैंगलोर, तो आपको इकोसिस्टम में जाना पड़ेगा। मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं सीए के हिसाब से सक्सेसफुल इसीलिए हुआ बिकॉज आई वाज एट द राइट प्लेस at the right place. Calcutta, Bada Bazaar, CA ecosystem. That's why I basically from nothing to everything I achieved in my life. So उसके बाद फिर मेरे को ये एक पता है कि आपको एक इकोसिस्टम में जाना पड़ेगा। आपको जहां भी आपको जैसा बिजनेस बना रहे हो, तो टेक बिजनेस बनाना था, ब्रोकर्स कम्युनिटी रिलेटेड, सो दैट वी एग्रीगेट द रियल एस्टेट ब्रोकर्स टू फाइट अगेंस्ट द कंपनी कॉल्ड नो ब्रोकर, एंड वी आर एम्पावरिंग ब्रोकर्स बेसिकली। करेक्ट। सो यहाँ पर 2017 में बैंगलोर शिफ्ट होने के बाद वी लॉन्च आवर मोबाइल एप्लीकेशन एंड 3 इयर्स अच्छा बिजनेस किया। बट कोविड पीरियड में कहीं ना कहीं हमको सेटबैक मिला उससे, तो फिर वी थॉट कि ये उस हिसाब से स्केल नहीं करता है जिस हिसाब से हमने सोचा था कि इसको द पर्पस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम कैलकाटा टू बैंगलोर इज टू बिल्ड अ लार्ज टेक कंपनी। राइट। तो उसके बाद हमने फिर एक बार उसको स्टॉप किया एंड देन वी कोविड पीरियड में कुछ और रिसर्च करने के बाद देन आइडिएशन हुआ प्रोरेटा का एंड फ्रैक्शनल कार ओनरशिप post covid we started. Oh, wonderful. So you obviously आपने मतलब पहले अपनी CA consulting practice खड़ी की and you became financially independent at the age of 30, but you realized अब कुछ और बड़ा करना है, and then business was obviously something rooted क्योंकि आप एक proper business Jain family से आते हो. Correct. Then you started something in the real estate space. You realized maybe it's not the right thing to do, and then ProRata was born in the COVID period. Yeah, so I'm a car enthusiast. You're a car enthusiast. Car enthusiast, and then basically एक fractional ownership. बचपन से आपको मतलब cars में interest था? Not बचपन से, but from the age of you can say 20 plus. Yeah. Okay. Yeah. So you've always been a car enthusiast in general. Yeah. You would research well. So I'm a self-driven person. I drive my own car. Correct. So that's my from last you can say 20 plus years. Yeah. Wonderful. From Calcutta to Bangalore, I have driven 2,000 kilometers. Oh my God. Okay. ठीक है, understood. But you know, जैसे आपने बताया प्रोरेटा का मतलब आपका आइडिया आपको कब आया, पर जैसे जब मैं ऑडियंस को भी बता रही थी, you know, this fractional car ownership as a term, सुनने में समझ में आता है, बट यू नो इट इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को भी, ऑडियंस को भी इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होगी। तो इफ यू कैन एक्सप्लेन, बिकॉज यू नो पीपल, लोग कार्स लोन्स पे EMIs पे ले लेते हैं, कार लीजिंग भी थोड़ी बहुत लोगों को पता है, बट फ्रैक्शनल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट लोगों को समझ नहीं आता। तो इफ यू कैन ब्रेक डाउन जस्ट द कॉन्सेप्ट एंड व्हाट दिस मीन्स इन सिंपल टर्म्स। Okay, so ProRata is a fractional car ownership platform where you can own premium luxury segment off-road car with nearby residents for your leisure and lifestyle purpose. So we are not solving commute. You are not solving for commute. Commute के लिए हमारे customers के पास एक या दो गाड़ी है and they need a premium luxury segment off-road car only for occasional usage. Okay. That's the market we are targeting. Okay. And what we do, we divide one car in 12 token of ownership. Just like 12 months, you can buy 1 token, 2 token, 3 token, each per your requirement, and 1 token represent 8.33% share of the LLP in which car is registered. Okay. So you get to use 30 days of usage credit per year, 30 days into 5 year, 150 days total usage, and after 5 year car is sold, you will get your resale value. अच्छा, रीसेल वैल्यू भी मिलेगी? Yes. Okay. And these 30 days you can book your slots as per your requirement. ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअस है। So आपको 2 दिन चाहिए, आपको 2 दिन हमारा ड्राइवर आपके यहाँ गाड़ी पिकअप करता है, ड्रॉप करता है। So this is for occasional usage. बर्थडे है, एनिवर्सरी है, लोगों को होम टाउन जाना है, लोगों को कहीं घूमने जाना है, वेकेशन पे जाना है, तो वहाँ उनको थोड़ी प्रीमियम गाड़ी चाहिए, तो या 7 सीटर कार चाहिए अगर बड़ी फैमिली है तो, जो कि उनकी नीड फुलफिल नहीं होती है, जो बेसिक कार वो डेली यूज करते हैं। तो वहाँ हमने एक देखा कि अगर आपको अच्छी गाड़ी, प्रीमियम गाड़ी का शौक है, या आपका यूज्ड केस है जिसमें आपको कभी कभार गाड़ी चाहिए, वो रेंटल बहुत महंगा पड़ता है। Correct. और रेंटल की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, प्लस येलो प्लेट एंड प्रेस्टिजियस भी नहीं है। तो हमने वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे वी आर द केयर टेकर, वी आर नॉट द ओनर ऑफ द कार, the owner are the customers. Right. So we build a community of 6, 7, 8, 9 people and form a LLP, get the car registered in the LLP name, funded by the customer. There is no loan, no EMI, and then we manage the entire store from end to end.
for Okay. next 5 years. So we are an asset management company. Got it. Yeah. Got it. पर सर फिर इसका if you can explain or tell me a little bit about, आपने बोला you will manage it. You're an asset management company. Like I'm thinking from my perspective, अगर मुझे for example कोई भी कार ओन करनी है, मेरा फर्स्ट कंसर्न ये होगा जब मैं लेट्स से फ्रैक्शनल ओनरशिप में जाऊंगी, विल द अदर ओनर बी एबल टू मेंटेन द कार और ड्राइव इट द सेम वे और जस्ट टेक केयर ऑफ इट, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग. तो हाउ डू यू गाइज टेक केयर ऑफ दैट जब लेट्स से एक ही कार के आपने बोला 12 टोकन है, लेट्स से दैट मींस अप टू 12 यूजर्स हो सकते हैं. Correct. एंड every person will take care of the car in a very different manner. That may be a concern. तो उसका like how do you take care of that? See, if you have your own car, Yeah. you have your own style of driving, managing, and everything. Correct. That you can't expect from the fractional ownership. हाँ, exactly. But fractional ownership में we take care of the service, maintenance, insurance, premium payment, car pickup and drop, cleaning, sanitization, everything. Cleaning, sanitization also. Yeah. At the time of the pickup and drop. Yeah, when the cars are getting exchanged from user 1 to user 2, let's Correct. So you get a neat and clean car, sanitized car. So we take care of all those things. Okay. Now driving habit nowadays, there are not much manual car. We don't deal much in manual car. All are automatic. Automatic. तो अब वो gear box का भी ये नहीं है. And अब क्या है कि मतलब cars are also advanced. So अब वो पहले वाला mindset नहीं है लोगों का कि मेरे को इतना maintain करना है या वो करना है. आप 5 साल आराम से गाड़ी को enjoy करो और 5 साल के बाद गाड़ी सेल हो जाएगी, आपको रीसेल वैल्यू मिल जाएगी. So it's basically you are upgrading your lifestyle. Got it. Yeah. Got it. You're solving for lifestyle is what I understand. Leisure and lifestyle. Leisure and lifestyle. Purpose, yeah. Correct. Perfect. When we're talking about leisure and lifestyle, then there will come customization also, right, sir? For example, मेरे को गाड़ी लेनी है, मुझे पिंक कलर की चाहिए, for example, अगर चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपने शौक के लिए ले रही हूँ, लाइफस्टाइल के लिए ले रही हूँ, कुछ दिनों के लिए ले रही हूँ, for whatever purpose it is, if I want a certain color or I want the body of the car to be a certain way, या कुछ मुझे feature enhancements चाहिए, is that possible in this model? So in a community basically approach, we are a community driven approach, right? We build a community of 7-8 people, like-minded people, in not like-minded, basically who live in the same locality, right? Verified personnel by us. Okay. So in a community driven approach, you can't have the customization. For example, you live in a residential society. You can't customize your apartment too much. Yeah. Right. But आप अपना विल्ला लो, अपना खुद का घर बनाओ, आप अपने हिसाब से बना सकते हो. Correct. तो आप अगर आपकी चॉइस बहुत ज्यादा डिफरेंट है, we advise you should have your own car. This is a community car जहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है वो स्टैंडर्ड का मिलता है और प्रीमियम सेगमेंट की कार है एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस. आपको कस्टमाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कार्स में हम लोग डील कर रहे हैं वो ऐसे ही इतने ज्यादा पावर पैक्ड है एडवांस फीचर्स के साथ. you don't need anything literally. Okay. Yeah. Got it. Understood. So now let's say, because these are my questions that I would have as a user. My dream car or my personal favorite is BMW X5, right? Okay. And I want to own it one day for sure. So let's say इस मॉडल के थ्रू if I want to fractionally own BMW X5, तो मुझे कितने की पड़ेगी and how do you go about the process? अगर मुझे प्रो रेटा पे खरीदनी है तो खरीदने की. So BMW X5 roughly around जो नया लेटेस्ट वेरिएंट है वो 1.2 करोड़ का आता है. ठीक है. So आप जो भी ऑन रोड प्राइस होती है कार की उसको 12 से डिवाइड कर दो. Okay. तो 1.2 करोड़ डिवाइड बाय 12 इज 10 लाख रुपीस. 10 लाख. सो 10 लाख का एक टोकन हो गया, विच इज 8.33% शेयर जो आपको अलॉट होते हैं. हाँ. तो आपको 30 डेज का यूजेज क्रेडिट आ जाता है. सो आप इतने ट्रेवल करते हो, इतना आपका ये है, तो आपको कार कभी कभी चाहिए, राइट? बिकॉज आपकी मतलब आप यू ट्रेवल टू बैंगलोर, यू ट्रेवल टू डिफरेंट सिटीज. अगर आप मुंबई में हो, आप like half of the year traveling, और तो आपको वो गाड़ी यूज भी नहीं होगी. अगर आप 1.2 करोड़ की कार ले लो, मोस्ट ऑफ द टाइम आधी टाइम वो पड़ी होगी एक्चुअली में. सो आप 2 टिकट ले लो अगर आपका ज्यादा यूजेज है, 60 डेज का ले लो 20 लाख रुपए में. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 10 लाख रुपीस. आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया, आपको 30 डेज इंटू 5 ईयर 150 डेज गाड़ी मिली, ठीक है? और ये आप अपने हिसाब से रिजर्व कर सकते हो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन जब आपको चाहिए. ठीक है. आफ्टर 5 ईयर यू विल गेट रीसेल वैल्यू. यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 4-5 लाख रुपीस एज मनी कमिंग बैक टू यू आफ्टर 5 ईयर. ओके. सो net is 5 lakhs rupees. Net is 5 lakhs rupees. Correct. For 150 days. For 150 days. So this is 10 times cheaper compared to rent or compared to ownership. You are saving close to 1 crore plus money. Correct. Right. Correct. And those
उस मनी को अगर आप दूसरी जगह इन्वेस्ट करो, हाँ. राइट, it will multiply also. True, makes Because sense. car is a depreciating asset. Asset, yeah, it is. So what we advise कि आपके पास एक या दो गाड़ी डेली यूज के लिए होनी चाहिए, हाँ. जो कि बेसिक कार होती Basic है, cars हो, हर हाँ. घर में होती है 10, 15, 20 लाख की, Correct. 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की। तो उसके बाद फिर आपके पास जो आपको शौक की कारी है, जो आपको ड्रीम कार है, जो आपको कभी कभार चाहिए, लाइक महिंद्रा थार, जीप रैंगलर, डिफेंडर ऑफ रोडिंग के लिए, लग्जरी सेगमेंट यू सेड BMW X5 और मे बी ऑडी Q5, राइट। तो ये गाड़ी आपको कभी कभी चाहिए, मीटिंग्स में जाना है, इवेंट्स में जाना है, राइट, पर्पस होना पड़ेगा, नहीं तो क्या ही सेंस है, करेक्ट। तो वो आप हमारे यहाँ बहुत कम प्राइस पर और एक स्मार्ट डिसीजन लेकर के आप ये कौन कर सकते हो। Got it. और ये जो 155 days आपने बोले in 5 years, I get to choose these 155 days. So 30 By days, booking. the 30 days every year, you हाँ. can reserve in our reservation system. Suppose you reserve for 5th May to 10th May. Correct. So 5th May to 10th May, car will be yours. Yours, हाँ. So we provide the pick up and drop facility at your doorstep. Right. You don't have to coordinate with the other co-owner. अच्छा, मुझे किसी और को ओनर से कुछ कोऑर्डिनेट नहीं करना है। 80 to 90% is in-app, everything will be fulfilled. 10% is we have our support team. Okay, just to add the advantage, right, at our platform, you are getting a white plate car. Because the car is owned by you, we are the caretaker. Yes. There will be no logo of our company, no sticker of our company. Right. So it is prestigious. Okay, and you are getting the same number plate car again and again for next 5 years. Right. So in this way, you have the advantage of ownership. Yeah. And financially is a smart decision. Correct. Because like you said, matlab, if I go to buy a car in a BMW store, which is an X5, 1.2 crores, the moment I drive it and I take it out of the store, it has, uski value वैसे ही down हो गई at that very moment because it's a depreciating asset. Yeah. Over a period of years, it's not going to give me more money than I've invested. वो कम ही होने वाली है. Correct. So even we have customers जिनके पास Mercedes, BMW, Audi है. अच्छा. Right, they are driving for daily use. Okay. Right, उनके लिए daily use की गाड़ी है वो. हाँ. But उनको चाहिए कुछ और कार, say for Defender या फिर Porsche 911. वो उनको कभी कभार चाहिए, right? और मे बी G-Wagon, right? तो G-Wagon ऐसी कार है जो 4 करोड़ के आसपास आती है. तो वो गाड़ी उनको चाहिए जो अराउंड मे बी अप टू 1 करोड़ की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं. वो उनकी डेली यूज कार है. So we have the customers from every segment. From 20 lakhs to up to 4 crore, we have all the different cars. Correct. Which have a different customer requirement. Yeah. But आपने G-Wagon का जैसे नाम लिया, and that's a very expensive car. 4 crores, almost 3.6 crores to 4 crores का range है, या up to 5 भी है, depending on different models. Yes. Today, India as a country has become more aspirational than ever. आज yes, Indians don't shy away when they talk about money या उनकी dreams या telling कि ये मेरी dream car है, मुझे ये करना है, I want to travel the world, spend this amount of money. And I've seen that shift. But when it comes to still like a 4 crore car, right? उसका थोड़ा अगर आप use case के बारे में बता सकते हो, और अगर G-Wagon किसी को own करनी है, for example, right? Because क्यों नहीं? Why not? If there is an opportunity, then why not? Then कितनी की पड़ेगी और कैसे होगा वो? So as I told you, G-Wagon लेने वाले जो customers हैं, see अगर आप full ownership में G-Wagon लो, right? I think it's a criminal waste of money. It is. Right. Genuinely. Because it's a depreciating assets. Yeah. And the person who wants to buy a G-Wagon, basically he's buying a G-Wagon, उसके पास ऑलरेडी 3-4 गाड़ियां होएगी, वो भी लग्जरी सेगमेंट, तो हार्डली वो यूटिलाइज कर पाएगा. सो दैट्स व्हाई इट डजंट मेक एनी सेंस टू हैव कि जस्ट मतलब इतनी महंगी गाड़ी आप लो, राइट? हैविंग मनी इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? इट इज योर मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी रिच, विच आई थिंक, बट उस पैसे को आपको सही यूटिलाइज करना है. दैट्स आई थिंक. तो द फ्रैक्शनल ओनरशिप में क्या होता है कि आपको जितना जरूरत है उतना आप यूटिलाइज कर पाते हो. सो अगर आपने इवन G-Wagon का एक टोकन लिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ G-Wagon 3.6 करोड़, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 12 इज 30 लाख रुपीस, राइट? सो 30 लाख रुपीस में आपका 3 करोड़ 60 लाख का ड्रीम ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा, राइट? और आपको like you will save a lot of money which you can basically invest to increase your wealth or do good for the society. Correct. And बहुत सारे दूसरे तरीकों में वो वहाँ यूटिलाइज हो सकता है और ये ड्रीम भी इन अ वे पूरी हो भी जाएगी. करेक्ट, बिकॉज एक बार आप 10 दिन चला लो फिर आपको वो शौक ही नहीं रहता, राइट? उतने कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजों में आप देख लो. करेक्ट. जब वो मिल जाती है फिर उसके बाद समझ में आ जाता है वो.
मैं एक और चीज सोच रही थी that आपके पास ऐसे कस्टमर्स आते हैं by any chance who are co-owning more than one fractional, who have more than one fractional car ownership on your platform. Let's say somebody who has an X5 also का token, G-Wagon का भी है, Defender का भी है, ऐसे भी लोग हैं, और अगर हैं तो उनका पर्पस क्या है? Yeah, so we have like car enthusiast kind of customer base where they want to co-own basically 2-3 different cars. Because अभी कार क्या ना एक कम्यूट सॉल्व नहीं कर रही है, हर कार एक डिफरेंट पर्पस को सॉल्व कर रही है. फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू ऑफ रोडिंग के लिए 3-4 ऑप्शन में बताता हूँ. महिंद्रा थार हो गई, जीप रैंगलर हो गई, डिफेंडर हो गई. तो ऑफ रोडिंग का अभी बहुत अच्छा इंडिया में अब शुरुआत हो चुकी है. राइट. तो वहां पे वो गाड़ी चाहिए, बट वो हमेशा आप रख करके क्या ही करोगे. देन आपका लाइक लग्जरी सेगमेंट में है, वो कभी कभार चाहिए लोगों को 7 सीटर बड़ी गाड़ी लाइक फॉर्च्यूनर या ये. तो अभी हमारे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं जिन्होंने एक 7 सीटर ले ली और एक मिनी कूपर ले ली. तो वाइफ के लिए मिनी कूपर हो गई, फैमिली के लिए 7 सीटर हो गई, और अपने लिए उनका जो शौक है वो गाड़ी हो गई लग्जरी सेगमेंट और व्हाटएवर. मतलब लोग 2-3 कार्स भी फ्रैक्शनली ओन कर रहे हैं. या दैट्स द पर्पस ऑफ द प्लेटफॉर्म कि आपको अराउंड 90 डेज भी मिल गया, वैरायटी भी मिल गई. Correct. Yeah. Makes a lot of sense. And you have 1 or 2 car for daily usage. Right. For your commute. So you have a lifestyle like a super rich person. Yeah. At a very affordable price. Correct. It's just made more accessible for people. Yeah, correct. Are there any other unique use cases that you would like to share जो आपने देखे हैं? Yeah, 2 strong use case I will say. जैसे मैंने शार्क टैंक में बताया था, एक तो कैपेसिटी लाइक 7 सीटर कार है. हाँ. तो 7 सीटर कार सबको चाहिए क्योंकि इंडिया में सबकी फैमिलीज बड़ी है, लेकिन कार सबकी छोटी है. like a 95% स्पेस प्रॉब्लम बहुत. 95% कार आज लाइक मतलब सबके पास कार इन द रेंज ऑफ 10 lakhs के नीचे है. करेक्ट. मारुति, हुंडई एंड टाटा आर द हाईएस्ट सेलर. तो उनको नीड होती है एक 7 सीटर कार लाइक महिंद्रा एक्सयूवी 700, फॉर्च्यूनर, हाई क्रॉस. सो 7 सीटर कार ओकेजनल नीड है उनकी. Correct. पूरी फैमिली जब साथ में जाती है. राइट. तो वहाँ हमारा एक अच्छा यूज केस है. ओके. उसके अलावा जो है एक कि आज बहुत सारे एनआरआई है. हाँ. अब आप देखो एनआरआई केरला और चंडीगढ़, ये 2 सिटीज से हमको काफी आया है रेस्पॉन्स, जहां वो साल में 1 या 2 बार इंडिया आते हैं. लेकिन जब इंडिया आते हैं उनको ऑलरेडी हैबिट जो है थोड़ी लग्जरी कारी की है, क्योंकि वो ऑलरेडी में भी मतलब जो कंट्री में रह रहे हैं. राइट. वहां पे इन टर्म्स ऑफ इंडिया कार ज्यादा अफोर्डेबल है. करेक्ट. लग्जरी कार्स. करेक्ट. तो उनको जब वो इंडिया आते हैं तब उनको 1 महीने के लिए गाड़ी चाहिए. राइट. 15-20 दिन के लिए चाहिए. तो एनआरआई इज अ वेरी गुड मार्केट. इट्स अ वेरी ह्यूज मार्केट फॉर अस, एंड वी आर डूइंग ग्रेट इन दिस सेगमेंट. वेरी इंटरेस्टिंग. देन वी हैव, यू कैन से एक एनआरआई का ही हो गया. जैसे इंडिया के लोग बाहर गए ना, अभी गांव के लोग शहर आते हैं, वो भी एक तरीका के एनआरआई. करेक्ट. तो एक यूज केस ऐसा भी है कि बैंगलोर, गुड़गांव और मुंबई में लोग रह रहे हैं. उनका होम टाउन 200, 300, 400 किलोमीटर में है. फॉर एग्जाम्पल लाइक बैंगलोर में जो लोग हैं वो केरला या आंध्रा या आप समझिए महाराष्ट्र, वहां से आते हैं. राइट. अब 200, 300, 400 किलोमीटर में अगर आपका घर है, तो आप कम से कम 2 महीने में, 1 महीने में वापस जाओगे, 4 दिन 5 दिन रह के आओगे. आजकल के जनरेशन में वर्क फ्रॉम होम है, तो चला गया 2 दिन की छुट्टी लॉन्ग, ये तो वहां पर 200-300 किलोमीटर जब, तो वहां पे लोग आराम से ड्राइव करते हुए जाते हैं, ढाबा में खाना खाते हुए जाते हैं. तो वो थोड़ा लाइफस्टाइल लोगों का हो रहा है. रोड्स भी बहुत अच्छी है अभी. करेक्ट. तो अब वो कल्चर आ रहा है कि मेरे को मतलब होम टाउन जाना है तो एक अच्छी गाड़ी में जाना है. तो वहां पर आप सेम कार अगेन एंड अगेन लेके जा रहे हो, व्हाइट प्लेट कार है, और आप काफी कम प्राइस में अपने नेटिव में हीरो बन रहे हो. करेक्ट. सही बात है. राइट. तो एनआरआई हो गई, और ये जो मतलब प्रोफेशनल्स जो मतलब अर्बन सिटीज में काम कर रहे हैं 200-400 किलोमीटर में जो उनकी होम टाउन है, ये एक अच्छा यूज केस है हमारा. गॉट इट. वेरी इंटरेस्टिंग. आपने शार्क टैंक की बात की, तो थोड़ा सा इफ यू कुड आल्सो शेयर अबाउट योर शार्क टैंक एक्सपीरियंस, हाउ वाज द एंटायर एक्सपीरियंस लाइक? शार्क टैंक इज लाइक एक्सीलेंट. लाइक मतलब आई हैव नेवर प्लान फॉर इट. वो अचानक से हो गया बिकॉज ऑफ आवर इंस्टाग्राम ट्रैक्शन एंड यूनिक बिजनेस आइडिया. शार्क टैंक अप्रोच्ड अस. Oh, ऐसा हुआ? Yeah. So okay. They approached us, and then we basically have done whatever they told us, and then we got selected also. And हमारा एयर भी हो गया. नहीं तो हमारे मतलब काफी लोगों का एयर भी नहीं होता है. तो Shark Tank is one of the best thing happen in my life. Yeah.
बिकॉज इट गिव्स अस द वैलिडेशन, ट्रस्ट फैक्टर. अब कस्टमर्स को अगर इवन अभी मैं कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने घर पे खुद जाता हूँ अभी भी, तो वहां पर लोग मेरे को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. तो वो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर शार्क टैंक ने दिया है. मार्केटिंग वाइज आपको क्या लगता है कितना हेल्प किया है? सो शार्क टैंक इज मेनली फॉर मार्केटिंग, नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट. राइट. सो शार्क टैंक का मार्केटिंग में ही ज्यादा रोल है. Yes, like founder also, sharks also, everybody is seeking for marketing only. Correct. Yeah. Correct. Also, sir, अब season 3 तो obviously has ended, but season 4 is just about to come, and the hype is created. And आप season 3 में गए थे, तो basis your entire experience, जो भी pitching हुई, and obviously उसके बाद जो deal close हुई, etc. Is there any feedback or in general any suggestions that you would like to probably give out there just for Shark Tank season 4? Anything that they can do maybe more innovatively or better, कुछ भी, something like that? सी शार्क टैंक में एक सजेशन मैं देना चाहूँगा कि आपका जो फंडिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी है. सो इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म वेयर देयर इज इंस्टेंट फंड, मे बी ए अमाउंट विल बी लो बट instant is very powerful. Like writing a check then and there. Correct. So that will help Shark Tank to get to a next level. Correct. अगर मतलब जो कमिटमेंट दी है शार्क्स ने, so there can be a 10% amount, right, which can wire at that point of time. Yeah. 90% आप ड्यू डिलिजेंस करके करो. Correct. That will help the entrepreneurs कि आपको कम से कम कुछ अमाउंट इंस्टेंटली मिल गया. Right. Because all the entrepreneurs who come there, yeah, 80% are kind of bootstrap. They need money, right? Yeah. So वो ड्यू डिलिजेंस 6 महीने 9 महीने होगा, उसकी वैल्यू काफी डाइल्यूट हो जाती है, इंटरेस्ट फाउंडर का भी कम हो जाता है, all those things. So right. Yeah. That's a valid point. Yeah. Yeah. And मुझे याद है जब आपका एपिसोड एयर हुआ था तो अनुपम मित्तल ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, which is he had asked कि जो यूजर जब इंटेंट दिखाता है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, जैसे मैंने बोला मुझे BMW X5 खरीदनी है, द इंटेंट टू द परचेज लाइफ स्पैन, जो टाइम साइकिल होती है उसके बीच की, वो अप्रोक्सीमेटली क्योंकि 2 से 3 महीने होती है, आपने बताया था एपिसोड में. आज के डिजिटल एज में where we have Blinkit, Zepto, Swiggy, Instamart and literally PS4s to now अभी सुनने में आ रहा है iPhones भी 10 मिनट में डिलीवर हो जाएंगे, 8 मिनट में, where you want everything instantly. Do you think the younger generation उनमें इतना पेशेंस है कि वो 2 से 3 महीने वो वेट कर लें to actually own the car? Correct. So like owning co-owning जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इट्स लाइक ए कम्युनिटी बिल्डिंग. तो अगर आप अपार्टमेंट लेते हो, राइट, आप 3-4 साल वेट करते हो बुक करके, राइट, इन द सेंस बिकॉज यू वांट ए कम्युनिटी और राइट प्राइस में. ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टेड हो गया तब आप ले सकते हो, बट उसमें प्राइस भी काफी हाई हो जाता है. तो अगर आपको कम्युनिटी का बेनिफिट लेना है मतलब ये, तो आपको थोड़ा पेशेंस होना पड़ेगा एंड यू आर अपग्रेडिंग योर लाइफस्टाइल. इट्स नॉट ओनली थिंक यू आर बाइंग ऑन रेंट कि आज आप रेंट पे ले लो, और मे बी इट्स नॉट लाइक दैट कि आप लोन और EMI पे ले लो. करेक्ट. को-ओनिंग के लिए थोड़ा पेशेंस होना जरूरी है बिकॉज इट सेव्स लॉट ऑफ मनी फॉर यू and it builds a very good community for you. Yeah. And it's upgrading your lifestyle. So 2-3-4 महीने तक लग जाते हैं. हमारे कुछ कस्टमर्स इतने पेशेंस में हैं कि 6 महीने से 1-1 साल तक वेट कर रहे हैं. उनको पता है क्योंकि वो सिटीज में हम लाइव नहीं है, राइट. तो दिल्ली अब हम मैच्योर हो रहा है, तो तो दिल्ली में काफी कस्टमर्स 6 महीने से भी वेट कर रहे हैं. बट कुछ कस्टमर हैं जो मतलब बैकआउट हो जाते हैं कि नहीं मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है. सो पेशेंस चाहिए, बिकॉज आप एक 5 साल के लिए अपनी लाइफस्टाइल को नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हो. करेक्ट. इट विल बी अ पर्सनल ब्रांडिंग फॉर यू. या करेक्ट. सो इस वक्त आप कितने सिटीज में लाइव हैं वैसे? व्हाट आर द सिटीज यू आर मेजरली ऑपरेटिंग इन अभी? मेजरली वी आर फोकसिंग ऑन बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, Delhi NCR. Recently started Mumbai with few options. Even Pune, Jaipur, Surat and Ahmedabad. और ये गुड़गांव, नोएडा क्यों नहीं? Delhi NCR. पूरा Delhi NCR region. बट अभी स्टार्ट कर रहे हैं फेज वाइज, so you can say Delhi NCR. Okay, very nice, got it. With that sir, एक और चीज मैंने जो ऑब्जर्व की है, like obviously as a founder you share and you talk a lot about how to hire the right people in a team, how to build a team. लोग बहुत बात करते हैं about leadership and a lot of other stuff, वो सब सही है, but I think in general जो लोग आपके अराउंड होते हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट प्रोफेशनल वर्क, राइट, इट कुड बी फ्रेंड्स, कॉलीग्स, एनीबडी दैट यू आर वर्किंग विद अराउंड इन जनरल, चूजिंग एंड गेटिंग द राइट सेट ऑफ पीपल जिन पे आप ट्रस्ट कर सको आज के डिजिटल एज में, राइट, हु यू नो आर हैविंग द राइट माइंडसेट, वो ढूंढ पाना या आइडेंटिफाई कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट मोस्टली, राइट.
डू यू हैव, आई डोंट नो, एनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस और हैक्स और फ्रेमवर्क जो आपने देखा है या फिगर आउट किया है कि ये चीजें फॉलो करके या इन चीजों को देख के आप समझ सकते हो एटलीस्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट या एक हद तक कि दीज आर द राइट सेट ऑफ पीपल टू वर्क विद एंड यू कैन ट्रस्ट देम एंड यू नो बिल्ड समथिंग टुगेदर और कीप देम अराउंड? सी ऑब्वियसली आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तभी आप किसी को समझ पाओगे कि ये मतलब उस पर्पस के लिए फिट है कि नहीं है, राइट? करेक्ट. बट ओवरऑल मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैंने क्या किया है कि मेरा एक अलग फार्मूला है विच इज व्हाट्सएप फार्मूला. व्हाट्सएप फार्मूला? या इट्स बेसिकली न्यू एज फार्मूला यू कैन से. सो मैंने अपने लाइफ में देखा है कि जिनकी व्हाट्सएप की ब्लू टिक नहीं रहती है, ऑफ होती है, मतलब ब्लू टिक ऑफ रहती है, लास्ट सीन नहीं रहती है, सो वो हमारे जो यूज मतलब जिनके, तो उनके साथ मेरा जो कनेक्शन है कहीं डिस्कनेक्ट ही होता है, इन द सेंस कि आई पुट देम इन अ ट्रांजेक्शनल, आई हैव सीन कि उनका ट्रांजेक्शनल बिहेवियर होता है, नेचर ट्रांजैक्शनल होता है. सो इफ यू से कि अगर आप किसी को साथ आपको काइंड ऑफ एनालाइज करना है कि इसको मैं एज ए टीम मेंबर्स लूं, एज एन एम्प्लॉई और एज ए लाइक यू वांट टू मेक ए फ्रेंड और एनीथिंग, पार्टनरशिप, एनीथिंग. सो आप दो चीज देखते हो, एक तो या तो भाई शॉर्ट टर्म होगा या तो ट्रांजेक्शनल थिंग, और या लॉन्ग टर्म आप डेवलप कर सकते हो. तो शॉर्ट टर्म के लिए ये ठीक है कि ये, बट लॉन्ग टर्म मैंने देखा है कि जिनकी ब्लू टिक और लास्ट सीन नहीं रहती, I have not seen good fit for the long term any kind of relationship. Okay. It can be a business relationship, it can be any kind of thing. Long term वहाँ पे थोड़ा सा mismatch होता है, क्योंकि क्या होता है कि आप ये सोचो कि WhatsApp ने या मेटा ने ये जो ब्लू टिक और लास्ट सीन बनाया है, क्यों बनाया है? Tell me. I'm asking from you, like why they build this feature? ताकि पता चले, मतलब किसी ने आपका मैसेज पढ़ा है तो आप रिप्लाई कर सको ना टाइम पे. करेक्ट. सो बेसिक चीज है. दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ट्रस्ट. एग्जैक्टली. सो द फीचर इज बिल्ड फॉर building trust in the society. Yeah. And somebody is like disabling those feature, you can understand what they want to think. So it's, and ये actually क्या था कि उनका किसी का भी ऐसा पर्पस नहीं है कि मेरे को मतलब ट्रस्ट, ये ऐसा नहीं है, बट क्या होता है कि ये इजीएस्ट वे आउट है कि यार लास्ट सीन बंद कर दो, ये कर दो, कोई किसी को ज्यादा जवाब नहीं देना पड़ेगा. दैट्स द इजीएस्ट वे. जो इजीएस्ट वे होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको नेचर में बिल्ड हो जाता है. सो देन वो एक्चुअली ऑनलाइन से ऑफलाइन में आपका बिहेवियर में पैटर्न आ जाता है वो. और आपको पता भी नहीं चलता है कब आपका वो नेचर वैसा बन गया. हाँ, तो वो ऑनलाइन ही वर्ल्ड आपको ऑफलाइन एक एज ए पर्सनालिटी आपकी हो जाती है कि आप फिर कई चीजों को इग्नोर कर रहे हो. तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है. आई विल डेफिनेटली वांट टू सजेस्ट मेटा डेट कि आपको ये सब फीचर्स नहीं देने चाहिए टू बिल्ड ए ट्रस्ट फॉर दिस सोसाइटी. राइट. आइडियली तो होने ही नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों में ऑब्जर्व भी हुआ है, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एंजाइटी, डिसएग्रीमेंट्स, प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट्स, बहुत कुछ होता है. यस. सो those kind of features will not be there for the good of the society. Yeah, and both professionally and personally it affects. Yes, because the purpose of these platform Meta and Instagram is to create trust, because and to connect people. Yeah, connect and create trust, to build a trustworthy society. सो ट्रस्ट के लिए जितने भी फीचर्स हैं, अगर वो आप चॉइस दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आगे जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. इसके बारे में तो अब मैं भी सोचूंगी. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट. ओके, बट विद दैट ऑब्वियसली एज वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे पर्सनली पूछनी है. मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी एज एन इंडिविजुअल ऑलमोस्ट 2 साल पहले शुरू की थी, एंड आई एम just going with the safe class, मतलब म्यूचुअल फंड्स में अपना SIP कर लिया, थोड़ा बहुत इधर गोल्ड में और all of that, right? But today I see there is an opportunity जहाँ पे आप obviously interesting startup ideas में भी या business ideas में भी invest कर सकते हो. Let's say मेरे पास spare 5 लाख रुपए पड़े आज और मुझे प्रोरेटा कार्स में invest करना है, मुझे चेक डालना है, तो I want to also understand how scalable is this business. And अगर मैंने 5 लाख डाला, for me as a user, what kind of an ROI can I expect, and basis your business model and where the company is going and what the vision is, अगर उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हो. सो इसके लिए मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट आर हाई रिस्क पोर्टफोलियो. करेक्ट. तो इसमें आपके पूरे पैसे डूब भी सकते हैं. हाँ. तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए. अच्छा. नाउ द हाई साइड. हाँ. हाई साइड इज लाइक 100x 200x 1000x काइंड ऑफ ROI. ओह माय गॉड. अगर ये बिजनेस मॉडल इस तरीका से मैंने जो सोचा है, तो इट्स अ मार्केट इज वेरी ह्यूज. राइट. बिकॉज इट इज वन ऑफ इट्स काइंड. या इंडिया में आज नहीं करते तो अराउंड 25 करोड़ हाउस होल्ड है.
उसके 8% के पास खुद की गाड़ी है, मतलब 2 करोड़ लोगों के पास खुद की गाड़ी है। 2 करोड़ लोगों में से अगर हमने 10 लाख कस्टमर भी एक्वायर कर लिए, right, and they will pay us around 30,000-40,000 annual maintenance charge. Correct. So this will be a 3,000 to 4,000 crore ARR company. Oh my God. So it's a multi-billion-dollar opportunity. Yeah. वो सामने में सब आप कैलकुलेट करके देख सकते हो. But I will not suggest to invest in pro rata because ये बहुत हाई रिस्क है. आपकी रिस्क एपेटाइट हो for high risk portfolio. Yeah. Then only you can fill up our Google form. Yeah. In Instagram. Okay. आप अपने इंटेंट सबमिट कर सकते हो. लिंक ट्री में लिंक है. जस्ट एक गूगल फॉर्म है और अभी तक काफी लोगों ने गूगल फॉर्म फिलअप किया है. क्लोज टू 20 करोड़ प्लस इंटेंट शार्क टैंक से के बाद आ चुके हैं. माय गॉड, 20 करोड़. हाँ, अब कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 25 लाख, ऐसे करके काफी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है क्योंकि ये जेन्युइन प्रॉब्लम उनको समझ में आई. जो इस प्रॉब्लम से रिलेट कर पाते हैं ना, वो सीधा गूगल फॉर्म जाकर के 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख गूगल फॉर्म इंटेंट सबमिट कर देते हैं. हम ये फंड अभी रेज नहीं कर रहे हैं. हम इन फ्यूचर अगर रेज करेंगे तो वी विल रीच आउट टू दोज पीपल एंड देन वी कैन हैव आवर डिस्कशन एंड क्लोज दिस राउंड. Got it. Very interesting. Yeah. Before we let you go, one last thing. For all the aspiring entrepreneurs out there, जो एक unique idea या एक unique challenge solve करना चाहते हैं, जैसे आपने एक बहुत unique segment choose किया. What is that one piece of advice जो आप उनको देना चाहते हो, who are trying to solve for something जो कि किसी और ने पहले solve नहीं किया है, and you're the first person in the market because वो थोड़ी tricky space होती है. Yeah, so it's a blue ocean basically. Yeah. So I'm a firm believer of execution. Problem क्या होती है, आपके पास आइडिया बहुत अच्छा आ गया, आप रिसर्च शुरू कर दोगे और 6 महीने रिसर्च ही करोगे, एग्जीक्यूट और स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं होती है. ठीक है, साथ में कुछ कुछ कर रहे हो, साथ साथ में बीच बीच में अपना जो मतलब आपका कीड़ा है उसमें आप थोड़ा थोड़ा कुछ कर रहे हो, बट एग्जीक्यूशन नहीं होता है. सो द चैलेंज हियर इज आपको फास्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. एग्जीक्यूशन इज द की राइट फॉर एनी काइंड ऑफ बेसिकली बिजनेस इफ यू वांट टू डू. एंड प्रॉब्लम क्या है लोगों में कि अगर काइंड ऑफ डिस्कशन कर रहे हैं, मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं. करेक्ट. तो वो एक तरीका का सबकॉन्शियस माइंड ये सोच रहा है मैं काम कर रहा हूँ, बिकॉज आप इवन यू डिस्कशन भी कर रहे हो, रिसर्च भी कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, यू गेट टायर्ड, बट वहां पे कंफ्यूजन ये होता है कि एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है. आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको बेचना पड़ेगा. करेक्ट. आप कस्टमर के पास जाओ, बेचो, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो, आप इन्वेस्टमेंट भी रेज करो. आई वांट यू टू कि 25-50 लाख रुपए रेज करो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के. जब आप रेज करोगे अपना इनिशियल फंड मे बी एज लो एज 10 लाख रुपीज, बट आप 20 लोगों से बात करोगे, और वहां पे आपको पता चलेगा कि उस आइडिया में कितना दम है. करेक्ट. Makes sense. Yeah. Right. That is very solid advice because I think सारे aspiring entrepreneurs वही stuck हो जाते हैं between that idea to execution loop. Yeah. उधर ही तो सारा I think game play होता है. Yeah. Perfect. I think I had a very great time, sir. I hope आपने भी enjoy किया the entire conversation. It was lovely getting to know more about ProRata, आपकी journey, and I hope कि audience को भी अब आई थिंक फ्रैक्शनल ओनरशिप, कार ओनरशिप के कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ गई होगी, एंड दे वुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इफ दे वांट टू यू नो co-own a car, then what does it really take and what use cases apply. So with that, we will also be linking all of Sanjeev sir's and ProRata's all their social media links in the description, so definitely do check them out. That is it for this episode. I will see you in the next one. Before you leave, don't forget to like, share and subscribe to the Dhairya Decodes channel. Thank you. Thank you so much for having me today. Thank you, sir.